Hello everyone, welcome to Career Launcher and this is Shashank. Today we are going to talk about some previous year questions, but before we move to the previous year questions, now let's see that the CSAT is going to held on 25th and सो बेसिकली ऑन 25th हम लोग 8 बजे इसका एनालिसिस करने वाले हैं एग्जाम का कि कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन डूएबल हैं. सो वी आर गोइंग टू do an analysis session on 25th at 8 o'clock. The complete and thorough analysis of CSAT exam that is going to held for this year. Okay, let's start with PYQs. But before that, we are going to see the trend analysis of CSAT. We have seen that CSAT has 80 questions in total. So if you see there is a huge variation in quant. So in mathematics or aptitude, they got 32 questions in 2019 to 2020. It increased by 10 numbers. So basically in 2020 we had 42. Then after that it has been then it is decreased by 10, then increased by 5. So basically it's going a little up and down, up and down, up and down. So next year we are expecting close to 35 to 40 questions in 2025. And if you see LR is similar to maths. It has been decreasing by a huge number. So in 2020 we have 12 questions of LR. 2021 there were 22. So अगले साल क्या होगा बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, but we are expecting the number of questions of LR are going to be close to 15 itself this year. In English, if you see the number after 2020 is more or less constant. It didn't change a lot. So in 2020 there were 26 questions, 2021 27 questions, 2022 27 questions. So English में वही हमारा expectation होगा कि 26 27 questions ही आएंगे. 2019 I would say it's a little different. So the difficulty level of LR. So if you see moderate and easy questions are a lot, means there are a lot of questions in reasoning that can be solved during the exam. They are not difficult. And if you see 2024 and 23, 3 questions and 4 questions are difficult. That's it. So out of 15 only 3 are difficult, and out of 11 4 are difficult. Now in 2023 this was a problem because there were only 11 questions and out of 11 there 4 were difficult. But if you look at 2022 there are only 2 difficult. In 2021 there are only 2 difficult. In 2020 there was no difficult question at all in reasoning. So I would say if I leave 2023, every year majority of the questions you are going to get in logical reasoning are going to be either easy और मॉडरेट. मतलब एग्जाम में आराम से होने वाले क्वेश्चंस हैं. सो इस साल एक्सपेक्टेशन है कि एलआर लॉजिकल रीजनिंग जो होगा अपना एलआर सेक्शन होगा उसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे. एक्सपेक्टिंग क्लोज टू 2 to 3 डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बाकी सारे मॉडरेट या इजी ही होंगे. Now let's go back to 2021 and see what kind of questions we got in 2021 in logical reasoning. So पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक ग्रुप है उसमें 120 लोग हैं. So there are 120 people in that group. 80 are Indians. Okay, so out of 120 I can say okay, Indians are 80. So it means there are 40 that are foreigners. So we got Indians, we got foreigners. Okay. Now it says that 70 people can speak English. Okay, so out of 120 English speaking लोग कितने हैं? 70 हैं. Non English speaking कितने हैं? 50 हैं. Right, so this is English speaking, this is non English speaking, and the question is talking about what is the number of Indians who can speak English. ठीक है, let's say ये जो 40 foreigners हैं ये सारे के सारे इंग्लिश बोलते हैं. राइट, और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 70. राइट, सो जो बच्चे 30 लोग होंगे वो 30 तो इंडियन ही होंगे. सो इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं वो 30 तो हो सकते हैं. इंग्लिश बोलने वाले और इंडियन ये 30 तो है. राइट, अब ये 70 जो इंग्लिश स्पीकिंग है ये सारे के सारे इंडियंस भी तो हो सकते हैं. राइट, क्योंकि ये तो बोला नहीं है कि फॉरेनर्स इंग्लिश बोलेंगे या नहीं बोलेंगे. सो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट जर्मन पीपल, दे डोंट स्पीक इंग्लिश.
चाइनीज पीपल, दे डोंट स्पीक इंग्लिश, राइट? सो ये सारे के सारे 70 लोग जो इंग्लिश बोल रहे हैं, ये सारे के सारे अपने इंडियन हो सकते हैं. सो बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड आर इंडियंस कैन बी 70. द मिनिमम वैल्यू इज इवेंचुअली गोइंग टू बी 30 ओनली. क्योंकि अगर मैं अज्यूम कर लूं कि सारे के सारे फॉरेनर्स इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 40 लोग तो फॉरेनर्स हो गए, तो बच्चे जो 30 होंगे इंग्लिश बोलने वाले में से, वो तो इंडियन होंगे ही होंगे. सो योर आंसर शुड बी 30 और more. So option D. Okay. Now let's look at the next question. So this is a question of data sufficiency. We have seen these kind of questions a lot. So ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि प्रिया जो है, प्रिया की जो रैंक है वो सीमा की रैंक से 31st है. सॉरी, प्रिया की जो रैंक है वो सीमा की रैंक से 4 कम है, और प्रिया की जो रैंक है वो बॉटम से 31st है. ठीक है. सो अगर प्रिया की रैंक बॉटम से 31st है, राइट, मतलब प्रिया के पीछे 30 लोग हैं. दिस इज व्हाट आई नो. ठीक है. एंड व्हाट इज सीमास रैंक फ्रॉम द टॉप. ठीक है. तो प्रिया के आगे कितने लोग होंगे? प्रिया के आगे 40 लोग हैं. सो 30 यहाँ पे आ गए. प्रिया इज 31st. तो प्रिया के आगे कितने लोग होंगे? 9. मतलब प्रिया की रैंक जो है वो 10 है. नाउ प्रिया की रैंक जो है वो सीमा की रैंक से 4 कम है, मतलब सीमा की रैंक क्या होगी? 6. मतलब we can directly get the answer from first statement. It means first alone is sufficient to give us the answer. ठीक है. एना की बात करें, सो एना की जो रैंक है बॉटम से 37th है, मतलब एना के पीछे 36 लोग हैं. तो एना खुद 37th हो गई, तो एना के आगे कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे. मतलब एना की रैंक कितनी होगी? 4th. और इसकी रैंक सीमा से 2 रैंक ज्यादा है, इसका मतलब सीमा की रैंक क्या होगी? 6. It means first statement alone is sufficient to answer the question. Second statement also alone is sufficient to answer the question. It means इस question का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, that either statement 1 alone is sufficient or statement 2 alone is sufficient to answer the question, right? So basically whenever you solve the question of data sufficiency, so always take the statements individually. Don't try to merge the statements initially. जब आप individually पहले statement से solve करेंगे, individually दूसरे statement से solve करेंगे, जब वो दोनों स्टेटमेंट से इवेंचुअली सॉल्व नहीं होगा, उसके बाद दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करना होता है. उसके पहले दोनों स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली यूज नहीं करनी होती. नाउ इफ आई लुक एट दिस 40 स्टूडेंट्स स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है. सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2. तो हमें डेटा सफिशिएंसी में इस चीज का ध्यान देना होता है. Now, let's move on to next one. So basically, my question is, who is heaviest among oh, who's heaviest among A, B, C, D, E? तो मतलब ये पूछा हुआ है कि A, B, C, D, E में सबसे भारी कौन है, right? A और D is heavier than B, E, F. Okay. So A जो है और D जो है, ये दोनों के दोनों लोग B से भारी हैं, E से भारी हैं और F से भारी हैं. लेकिन इनमें से हैवीएस्ट कोई भी नहीं है. ठीक है. अगर हैवीएस्ट कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि जो हैवीएस्ट बंदा होगा वो सी होगा. मतलब पहले से तो आंसर आ रहा है, राइट? अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट लूं, तो दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ए जो है वो डी से हैवियर है, लेकिन सी से लाइटर है. इसका मतलब ये है कि सी जो है वो ए और डी से हैवियर तो है, लेकिन व्हाट अबाउट बी एंड ई? सेकेंड स्टेटमेंट में हमें बी और ई के बारे में कोई भी बात नहीं बोली गई है, इसलिए हम सेकेंड स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते. इसलिए इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट अलोन होगा, सेकेंड अलोन नहीं होगा. क्योंकि फर्स्ट अलोन में उन्होंने जब ये लिख दिया कि नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट, इसका मतलब ए डी बी ई एफ में से कोई हैवी है ही नहीं, हैवीएस्ट नहीं है. इसका मतलब हैवीएस्ट कौन होगा? हैवीएस्ट इज गोइंग टू बी C. So that's how we can figure out the answer. So answer of this question is going to be option A. Statement 1 alone is sufficient, but statement 2 isn't. ठीक है. Now let's move on to this one. What does it says? In English alphabet, there are 4 letters. The first 4 letters are written in the opposite order. So इसका मतलब first 4 का मतलब हो गया A, B, C, D. तो इसको अपोजिट ऑर्डर में लिख दिया, मतलब D, C, B, A लिख दिया. ठीक है. एंड नेक्स्ट 4 का मतलब क्या हुआ? E, F, G, H.
इसको भी अपोजिट ऑर्डर में लिख दिया, HGFE, ठीक है, एंड सो ऑन। सो मतलब 4 4 का ब्लॉक बना के हम लिखते जा रहे हैं और एंड में y और z को इंटरचेंज कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर, ठीक है। मतलब ऐसे लिखेंगे, जब ऐसे लिखेंगे सो अपने पास 13th लेटर आएगा, 13th के फोर्थ राइट में कौन सा होगा, सो 13 + 4, इसका मतलब वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर 17th लेटर जो इस सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। सो 4 4, अगले 4 भी जाएंगे तो 12, उसके बाद अगले 4 भी जाएंगे 16, तो 16 के बाद जो अगला ग्रुप होगा उसको जो मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा वो मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो जो 17वां लेटर यहाँ पे होगा, सो बेसिकली 17 18 19 20 होगा, उस हिसाब से हमें करना है। सो बेसिकली यहाँ पे 20th लेटर आना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली यू हैव लेटर 1 2 3 4, सो दिस हैज बिकम 4 3 2 1। सो बेसिकली इसमें हम लोग जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हम हमेशा नंबर्स को उसमें ब्रेक कर देते हैं कि अल्फाबेट्स को हमेशा नंबर में ब्रेक कर लेते हैं, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी 8 7 6 5, राइट। अब अगला होगा 9 10 11 12, तो उसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। फिर होगा 13 14 15 16, उसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। फिर होगा 17 18 19 एंड 20, उसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। सो जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे सो दिस इज गोइंग टू बी 20। मतलब यहां तक तो 16 लेटर हो गए, तो 17वां लेटर जो होगा वो ओरिजिनल सीरीज का 20th लेटर होना चाहिए, और ओरिजिनल सीरीज का जो 20th लेटर होता है वो होता है टी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली गोइंग टू बी ऑप्शन बी। सो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि always convert alphabets in the corresponding numbers so that you can get your answers very easily. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What does it says? It says that 7 books P Q R S T U V. So we have P, we have Q, we have R, we have S, we have T, we have U, we have V. R, Q, T have blue colors. So R has blue, Q has blue, and T has blue colors. And rest have red colors. So red, 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 and red. S and U are new books. So this is new, this is new, and the rest are old. So old का मतलब ये सारे के सारे old है, ठीक है। P Q R, sorry, P R S are law reports. So P is law, R is also law, S is also law, and rest are gazetteers. So basically G, 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 G. Okay. Book of old, old का मतलब गैजेटियर्स एंड ब्लू कलर्स। मेरे को ये चाहिए कि ओल्ड भी हो तो मतलब ओ होना चाहिए, और जी होना चाहिए, और बी होना चाहिए। ओ जी बी, दैट्स टी। सो टी का मतलब आइदर सी और डी, ओके। ओ जी बी, सो दैट्स क्यू। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली गोइंग टू बी सी। वैसे अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से सॉल्व करें तो इसमें हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है इतना। अगर हम क्वेश्चन को पहले पूरा ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद इसको क्वेश्चन पढ़ने बिना ये सब लिखे करने की कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं आसानी से, बिकॉज आई नीड ओल्ड, और पी और एस और यू न्यू है, ठीक है। सो एस नहीं हो सकता, यू भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो आप सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। पी आर एस आर लॉ रिपोर्ट्स। सो बेसिकली आपको गजेटियर्स चाहिए, तो पी आर और एस तो नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यू आर डायरेक्टली गोइंग टू गेट योर आंसर एज ऑप्शन सी। तो ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, यू कैन इजिली गेट द आंसर राइट। नाउ लेट्स लुक एट दिस। रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म by the correct term in the given sequence, and where odd terms and even terms follow the same pattern. अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आई वुड से डिफिकल्ट है, क्योंकि इसको कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें इनकरेक्ट टर्म, और हमें अब यहाँ पे ऑप्शन गिवन है तो हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें, कि हमारा पहला काम ये है कि ये फिगर आउट करना कि गलत कौन सा है, ठीक है। उसके बाद उस गलत को सही टर्म से रिप्लेस करना है, और जो सही टर्म है वो ऑप्शन में है। सो दैट्स व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, कि जो सही नंबर है अपना काम उसको निकालना है, अपना काम वो नहीं करना है,
ठीक है, ये परेशान नहीं होना है कि गलत टर्म कौन सा है, गलत टर्म नहीं निकालना है हमको, हमको गलत टर्म को रिप्लेस करना है और जो नई चीज है उसको ऑप्शन में ढूंढना है. So I am going to write odd terms. So 3, 7, 13, 21, 31, 43. So basically इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. What is the first thing we are going to do? We are going to take the difference. So difference is 4, difference is 6, difference is 8, difference is 10, difference is 12. ठीक है. Now if I go for 2, 4, 10, 18, I'm writing even terms now. This is 28 and 40. So the difference is 12, fair point. Difference is 10, fair point. Difference is 8, difference is 6. And this difference is 2. But this difference should not be 2. This difference should be 4. So basically, I need, so incorrect term of this series is 2. And it should be replaced by 0. क्योंकि difference कितना होना चाहिए 4. सो पहला वाला जो नंबर होना चाहिए वो 4 से 4 कम होना चाहिए, तभी अपने अपने दोनों सीरीज मैच करेंगी. सो बेसिकली द करेक्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गोइंग टू बी 0. दैट्स ऑप्शन ए. And that's how we are going to approach this question. So we have already seen these kind of questions previously. हम लोग अगर आप पिछले वीडियोस देखेंगे जो 2022, 2023, 2024 के हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं, उसमें यू आर गोइंग टू फाइंड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और जो बहुत डिफिकल्ट नहीं है. And if excuse me, if anyone has any doubt, you can drop a message on the comment box, and we'll be happy to respond. Thank you.